we have another very special guest, His Grace Sri Chaitanya Chandra Prabhu. Sri Chaitanya Charan Prabhu Ki. A little introduction. Prabhuji has come here for the first time. Although he studied in Pune, worked, and he stayed for several years, many years at Pune Temple, and thereafter सेवा की आवश्यकता के अनुसार वह अब पूरे विश्व भर में अलग अलग जगह पर ट्रैवल करते हैं. वो 25 साल से अधिक इस्कॉन में सेवा दे चुके हैं और 27 से अधिक इन्होंने अब तक किताबें लिखी हैं. मेरा अनाउंसमेंट भी हिंदी इंग्लिश में ही होगा क्योंकि मुझे कुछ शब्द याद नहीं आ रहे, उसको इंग्लिश से हिंदी में कैसे कहूँ. सो ही इज़ अ प्रोलिफिक राइटर, स्पीकर हु फ्रिक्वेंटली ट्रैवल्स. यू नेम अ कंट्री, वहाँ पे प्रभु जी का कोई ना कोई प्रवचन रहा होगा, यू नो. एंड अलॉन्ग विद दैट प्रभु जी की एक प्रसिद्ध वेबसाइट है जिसका नाम है thespiritualscientist.com, जहाँ पे हजारों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं. कभी आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं. यू कैन पुट योर क्वेरी एंड कुछ ही दिनों में प्रभु जी का वहाँ जवाब आ जाता है. या अगर आपको वहाँ जवाब भी नहीं तो वहाँ जाके आप अनेक प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं. साथ ही साथ इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड गीता डेली. दिस इज़ इनिशिएटिव प्रभु जी स्टार्टेड सेवरल ईयर्स अगो, जहाँ प्रतिदिन वो गीता के एक श्लोक पर ही राइट्स हिज मेडिटेशन. सो लाइक दैट देयर मोर देन 1700 मेडिटेशंस. साथ ही साथ इस्कॉन में अलग अलग सेवाओं के साथ साथ वी हैव सम व्हाट वी कॉल एज शास्त्रिक एडवाइजरी कमिटी और काउंसिल. ही इज़ एन एक्टिव मेंबर एंड एन एसोसिएट एडिटर फॉर आवर monthly magazine known as Back to Godhead. One very special thing about Prabhuji's presentation and writing skills is he makes a complicated subject very easy. Not only easy, but very relevant. हम सभी ने रामायण से अलग-अलग कहानियाँ सुनी होंगी. One more talent, I make easy subjects very complicated also. Yeah, I mean, okay, Prabhuji was making a point like this in his last visit also. And one very interesting, unique thing is, you know, we all have heard different Lord Ram's pastimes, Mahabharata stories, very beautiful life lessons, you know, how you can apply in your life. And if there is a situation, there is some historical, incident in our history. And so beautifully he bridges the gap in the history and the current scenario. Is an amazing gift, I would say, gift of the Lord. We were having a session in the afternoon जहाँ प्रभु जी यही कह रहे थे कि हर व्यक्ति को अपने भगवान के द्वारा दिए हुए गिफ्ट को समझना चाहिए और उसको समझने के बाद समाज में लोगों की मदद करनी चाहिए. वह भी अपने टैलेंट्स को समझें, उभारें और साथ ही साथ समाज में योगदान दें. So at least I know one person who has definitely discovered his soul's code and the God-given talents. और प्रभु जी बड़े ही what to say in a very compassionate way he travels all around and वो उस चीज़ को समाज में सबके संग शेयर करते हैं, प्रेरणा देते हैं. And I hope that this presentation is going to be very, very enlivening. We had a fantastic session in the afternoon also. So let's welcome His Grace Chaitanya Charan Prabhu to our Hinjawadi community by once loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. So let's begin with some prayers. We'll discuss on this verse from the Bhagavad Gita after that. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सो आज हम चर्चा करेंगे किस तरह से अभी जो राम मंदिर की स्थापना हुई है, तो उसके आधार पर कि हम हमारे हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र को किस तरह से प्रस्थापित कर सकते हैं। ये 16वां अध्याय भगवद गीता का 22वें श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं श्लोक का अर्थ बताता हूँ, फिर हम उसको दोहराएंगे। एतैर, पिछले श्लोक में बताया गया, भगवान ने बताया कि जो नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो भगवान यहाँ पे बता रहे एतैर विमुक्तः कौन्तेय, अगर इन चीज़ों से कोई मुक्त हो जाता है, ये क्या है, तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः, ये अंधकार तमस की ओर लेके जाने का द्वार है ये। तो हम दोहरा सकते हैं एतैर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः। तो नरः जो मानव है, ये अगर 3 द्वारों से मुक्त हो सकता है तो क्या होता है, आचरत्य आत्मनः श्रेयस। तो आचरत्य आचरण करता है, आत्मनः मतलब स्वयं, श्रेयस खुद के कल्याण के लिए, प्रेयस जो होता है वो शॉर्ट टर्म गेन होता है, अभी अच्छा लगता है पर बाद में परिणाम काफ़ी खराब हो जाता है। पर श्रेयस मतलब व्यक्ति का कल्याण होता है उसे, न केवल उसका लॉन्ग टर्म कल्याण होता है, पर उसके बाद में तत्तो याति, उसके बाद उसको पराम गति, सर्वश्रेष्ठ जो गति है, जीवन का परम उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति होती है। ततो याति पराम गतिम एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। आखिरी बार अभी हम सब साथ में दोहराएंगे। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस तो याति पराम गतिम। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं आचरत्य आत्मनः श्रेयस। सो एसेंशियली जब हम कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में कई बार रास्ते पे चल रहे होते हैं तो हमें फॉर्क्स आते हैं, चॉइसेस आते हैं, और जब ऐसे चुनाव करने का प्रसंग आता है तो सम चॉइसेस, एवरी चॉइस मैटर्स, बट सम चॉइसेस मैटर मच मोर देन अदर्स। कुछ ऐसे चुनाव होते हैं, तभी जब हम कार्य करते हैं तो कभी कभी हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है, कभी कभी बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। कोई ड्राइविंग कर रहा है तो ड्राइविंग करते समय वो अपने फ़ोन को देख लिया, कोई मैसेज देख लिया, ठीक है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बोल सकता है। पर मान लीजिए हमने ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी क्राउडेड रास्ते पे कर रहे हैं जहाँ पे स्कूल एरिया है, और अब अचानक कोई बच्चा दौड़ के आ जाता है और हमारी गाड़ी उसको ठुकरा देती है। तो क्या है, वो ड्राइविंग करते हुए थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होना, ये एक चॉइस है। कभी कभी चॉइस से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कभी किसी चॉइस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस कि जब हम मानव स्वभाव के बारे में विचार करते हैं, खुद के स्वभाव के बारे में विचार करते हैं कि व्हाट मेक्स अस डू व्हाट वी डू, जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं। कभी कभी लगता है मुझे, मैं चुनाव कर रहा हूँ, और कभी कभी लगता है मुझे कि मेरे अंदर से कोई और चीज़ है वो चुनाव कर रही है। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ पर फिर भी गुस्सा हो जाता है, तो मैं किसी पे चिल्लाना नहीं चाहता हूँ फिर भी चिल्ला देता हूँ। तो कई बार ऐसे लगता है कि हमारे अंदर से कुछ और चीज़ कार्य कर रही है।
तो ये क्या है और उस पर हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो मैं बता रहा था कि अभी मैं लगभग एक हफ्ता पहले मैं अयोध्या में था। तो आप में से कोई अभी तक अयोध्या जा पाया है? बहुत ही अच्छा, ये नाइस। आप वॉलंटियर के रूप में गए थे वहाँ पे कि यात्रा के लिए? और वीक है, एक्सेलेंट। तो बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर वहाँ पे बनाया है अभी। और अभी क्या है कि इसमें देयर आर 3 थिंग्स। एक है द टेम्पल। अभी हम राम राज्य की बात करते हैं, तो अभी रामचंद्र का रामचंद्र का मंदिर बनाना ये महत्वपूर्ण है ज़रूर। इंस्टॉलिंग द लॉर्ड in the temple is important, but installing the Lord in our own heart, that is equally if not more important। कि हमारे हृदय में हमें भगवान को प्रस्थापित करना है, और न केवल करना है, और फिर हमारे हृदय से we are able to transmit it to others' hearts। तो राम राज्य स्पेशल इसलिए नहीं था, केवल इसलिए नहीं था कि राम राजा थे, उसे स्पेशल इसलिए था कि वहाँ पे जो नागरिक थे वो भी चरित्रवान थे, उनका भी कैरेक्टर अच्छा था। कभी कभी कई धर्मों में ऐसा हो जाता है, ये खास करके वेस्टर्न अब्राहमिक रिलीजन्स में है, पर कभी कभी इंडियन रिलीजन्स में भी आ जाता है कि देयर इज़ द आइडिया ऑफ द सेवियर कॉम्प्लेक्स। सेवियर कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? कि कोई व्यक्ति आएगा और वो सबको बचा लेगा, कोई व्यक्ति आएगा और सारी समस्याओं का हल कर देगा वो। तो अभी ऐसा भाव हमारे शास्त्रों में नहीं है। हाँ, भगवान बार बार अवतार लेते हैं, पर जब भी देखते कृष्ण स्वयं अवतार लेते हैं, कृष्ण स्वयं कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं करते, कृष्ण अर्जुन को एम्पावर करते हैं, अर्जुन तुम युद्ध करो। तो इन वन सेंस कैसे है कि जब हम ऐसे नहीं कि भगवान आके सारी समस्याओं का हल कर देंगे। यस, गॉड कैन फिक्स ऑल प्रॉब्लम्स, बट गॉड कैन ऑल्सो फिक्स अस सो दैट वी कैन फिक्स आवर प्रॉब्लम्स। कि और वह और महत्वपूर्ण है, उससे हमारा प्रतिबंध होता है। तो हम देखते हैं प्रभु श्री रामचंद्र सीता का संरक्षण करने के लिए, सीता को प्राप्त करने के लिए पुनः वापस वह सागर पे जाते हैं, पर वो एक ब्रिज सेतु बना कर जाते हैं। हनुमान जी को एम्पावर करते हैं कि वो कूद के जाके छलांग मार के जाते हैं। तो अभी रामायण में सुंदर कांड जो है वो बहुत ही प्रिय है, और एक तरह से देखेंगे सुंदर कांड में प्रभु श्री रामचंद्र है ही नहीं, लगभग सिर्फ शुरुआत में है और एंड में है। वो रामायण है, और रामायण का सबसे प्रिय जो विभाग है एक तरह से उसमें राम है ही नहीं, पर है उसमें राम। कैसे है वो? कपिवर संतत चिंतित राम, तद्गति विघ्न ध्वंसक राम। नाम रामायण में बताया गया है कि क्या हो रहा है वहाँ पे? कपिवर संतत। हनुमान जी कपिवर है, वानरों में सर्वश्रेष्ठ है। कपिवर संतत चिंतित राम, वो हमेशा प्रभु श्री रामचंद्र का चिंतन कर रहे थे, कैसे मुझे उनकी सेवा करनी है, समस्या का हल कैसे करना है, वो कैसे करना है। और जब वो ऐसे कर रहे थे तो प्रभु श्री रामचंद्र के कृपा से क्या हो रहा था? तद्गति विघ्न, जो उनके प्रगति में जो विघ्न, जो बाधाएं थे, ध्वंसक राम। ये प्रभु श्री रामचंद्र वो सारी समस्याओं को निकाल रहे थे। तो ये जो है, यह दिस इज द डायनामिज्म ऑफ भक्ति। जो भक्ति में जो डायनामिज्म होता है वो क्या है कि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, जब हम भगवान की सेवा भाव रखते हैं, तो भगवान हमें एम्पावर करते हैं। और जैसे भगवान ने अर्जुन को किया था, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र ने हनुमान जी को किया था, वैसे हम सब भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो है, वी ऑल कैन बिकम एजेंट्स ऑफ चेंज। हम सब खुद परिवर्तित हो सकते हैं और दूसरों को परिवर्तन करने में मदद कर सकते हैं। तो ये जो है, अभी हमारे अंदर अगर हमें एक तरह से राम राज्य हमारे हृदय में लाना है, तो फिर वो रेडिएट होगा और दूसरों की ओर भी जाएगा वो। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? तो हमारे हृदय में क्या है और उसको कैसे बदलना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो अभी जो है, हम 3 कैरेक्टर्स देखेंगे रामायण में। टू बी ह्यूमन इज़ टू मेक मिस्टेक्स, टू एयर इज़ ह्यूमन, जैसे कहते हैं हम,
कि सब लोग गलतियां करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि अगर हमें हमें अच्छा बनना है तो कभी हम गलतियां करते ही नहीं हैं, पर गलतियां होती है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे हम क्या सीखते हैं। तो हम 3 कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक है सुग्रीव, दूसरी है कैकेयी और तीसरा है रावण। तो अभी ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं उन सब के जीवन में कुछ ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं। तो हमारे जीवन में जब हम कार्य करते हैं, हमारे एक्शंस जो होते हैं वो लार्जली 2 चीज़ों से प्रभावित होते हैं। केवल नहीं, हमारे जो एक्शन होते हैं उसको प्रभाव करने वाले एक चीज़, मेनली 2, पूरे नहीं है कम्प्लीटली, पर एक है कि हमारा डिस्पोजिशन, हमारे विचारधारा कैसी है, इसको हिंदी में कैसे कहते हैं, हमारी मनस्थिति। और फिर दूसरा है हमारा सिचुएशन, वह है हमारी परिस्थिति। तो मनस्थिति और परिस्थिति, इन दोनों से हम प्रभावित हो जाते हैं। तो कोई साधारण शांत व्यक्ति है, वो बहुत क्रोधित हो जाता है, तो हमको आश्चर्य लगता है, तुम इतने क्रोधित कैसे हो गए, क्या हो गया? फिर बोलते नहीं नहीं ऐसे हो गया था मेरे जीवन में। तो अच्छा, ये परिस्थिति थी, इसके कारण तुम्हारा ऐसे मनस्थिति बदल गई, तो तुमने ऐसे कार्य किया। तो अभी ये मनस्थिति और परिस्थिति, ये दोनों हमारे कार्य को प्रभावित करते हैं। पर इसके अलावा हम सबके पास क्या है, फ्री विल है, हम सबके पास स्वेच्छा है। तो ये दोनों जो है, हमारी जो मनस्थिति है और हमारी परिस्थिति है, दे पुश अस, वो हमें पुश करते हैं एक पद्धति से कार्य करने के लिए। बट वी कैन काउंटर पुश, ये पुश करते हैं पर वो फोर्स नहीं करते हैं हमको। पुश होते हैं हम, फोर्स नहीं होते। पर कभी कभी जब हमारे पुश आते हैं कुछ, तो उस पर हम ऐसे ही कार्य कर देते हैं। तो ऐसे क्यों होता है और कैसे उसको रोका जा सकता है, वो देखेंगे हम अभी। तो अभी ये 3 कैरेक्टर्स हैं, तीनों ने कुछ गलत किया कहीं भी। तो सुग्रीव ने क्या गलत किया, किसी को पता है, किसी को याद है? यस, एक्सीलेंट, थैंक यू। व्हाट इज योर नेम? कनक, थैंक यू कनक, वेरी नाइस, जय। सो he forgot his promise। तो अभी सुग्रीव जो था, एक तरह से वो जो परिस्थिति है काफ़ी विचित्र है। अगर मान लीजिए हमारे परिवार में कोई खो गया है, हमारा बच्चा कोई खो गया है कहीं, तो क्या बारिश आ गई इसलिए हम बच्चे को घूमना रोक देंगे क्या? और तो प्रभु श्री रामचंद्र ने सीता खो गए 4 महीने क्यों रोक दिया? तो तभी क्या है, आचार्यगण बताते हैं कि तभी क्या हो गया कि वाली का वध हो गया था, और वाली इंद्र का पुत्र था। तो इसीलिए इंद्र इतना क्रोधित हो गया, उसने बहुत बारिश करा दी। और ऐसे बताया जाता था भाई, इतनी बारिश हो गई थी कि व्यक्ति अगर बाहर आता था उसको अपना हाथ भी नहीं दिखता था, इतना पानी था। तो वो असह्य ही हो गए थे, कुछ कर ही नहीं सकते थे उस परिस्थिति में। तो तभी रुक गए वो। तो अभी उस परिस्थिति में सुग्रीव पूरा भूल गया क्या करना है। तो अभी जब सुग्रीव भूल गया तो क्या हो गया वास्तव में? तो एक तरह से कह सकते हैं आजकल की परिस्थिति में है कि से कोई पैंडेमिक है, लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन हो गया है, कुछ वर्क फ्रॉम होम का कुछ सिस्टम नहीं है, अभी तक कुछ काम नहीं है हमारे लिए, और हमारे पास पूरा ब्रॉडबैंड वाईफाई है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, और फिर क्या होता है, नेटफ्लिक्स के साथ हम नेट में फिक्स हो जाते हैं। तो वैसे ही वो अब क्या था, सुग्रीव कई सालों से वनवास में था, और इन सम वेज सुग्रीव का वनवास जो था वो प्रभु श्री रामचंद्र के वनवास से भी और बुरा था। क्यों, कोई कह सकता है? यस, एक्सीलेंट। तो उनकी जो पत्नी थी, उनका परिवार था, उनके साथ नहीं था। वेरी नाइस। एक और कारण, उन्हें अपने राज्य से निकाला दिया गया था। वनवास का मतलब ये ना, राज्य से निकाल देना। तो प्रभु श्री रामचंद्र को भी निकाल दिया गया था। आप सही है, पर एक और पॉइंट है उसी, उनको हमेशा बाली का डर था। यस, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। अरे किड्स आर वेरी क्लेवर हियर।
तो बाली हमेशा, जो वाली था हमेशा उनको मारने का प्रयास कर रहा था। प्रभु श्री रामचंद्र को भरत मारने का प्रयास नहीं कर रहे थे बिल्कुल, तो याचना कर रहे थे आप वापस आ जाओ। तो दोनों के कारण वो हमेशा इधर उधर भागने का प्रयास कर, बचने का प्रयास कर रहा था। तो फिर उसके बाद में वो भी राजकुमार था, और बड़े ही तपस्या में रहने के बाद एकाएक पूरा ऐशो आराम मिल गया। दूसरा इंटरनेट का उदाहरण छोड़ देंगे, हम बोल सकते हैं कि किसी ने बहुत दिनों तक कुछ खाया नहीं है, और फिर उसको बाद में वो घर आता है और पूरा फ्रिज भरा हुआ है, और फिर वो कुछ समय में वो फ्रिज खाली हो जाता है, पेट भर जाता है। तो क्या होता है, तो वैसे ही वो पूरा भोग में लग गया और सब कुछ भूल गया वो। तो अभी एक तरह से कह सकते हैं वो परिस्थिति के कारण हो गया। तो जब कोई व्यक्ति गलती करता है, तो जब वो गलती करता है, वो कब उसके गलती को माफ़ करना है, कब उसकी गलती को माफ़ नहीं करना है, यह इसको हमें विचार करना पड़ता है। तो अभी अगर किसी के का परिस्थिति के कारण गलती हो गई है तो ठीक है, उसको माफ़ कर सकते हैं, पर उसकी विचारधारा ही ऐसे है, उसकी डिस्पोजिशन ही एक तरह से है, तो फिर उसको माफ़ करना उचित नहीं, वो बार बार वैसे ही करते रहेगा वो। तो अभी किसी की गलती हो गई किसी से, क्या वो परिस्थिति के कारण हुई है या नहीं हुई है, यह हम कैसे पता कर सकते हैं? तो कोई वैसे किसी ने कोई झूठ बोला है, किसी ने कोई बेईमानी की है, किसी ने कुछ किसी के बारे में अफवाह फैला दी है, बुरा है ये सब, पर वो क्या आवर एक्शंस, व्हेन डू दे, जब हमारे कार्य होते हैं, व्हेन दे रिफ्लेक्ट आवर कैरेक्टर, कब वो हमारे चरित्र को दर्शाते हैं, और कब दे, let's put it, not distort our character, but they give a distorted picture of our character. कोई व्यक्ति साधारणतः शांत स्वभाव का है, पर कभी वो बहुत चिल्लाता है, और हम उस व्यक्ति को तभी देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति है। तो क्या उसका गुस्सा आया है, चिल्लाया है, वो हमने देखा है सत्य में, पर उससे कब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शॉर्ट टेम्पर्ड है या शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है? कैसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो मतलब वो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है, नहीं है, अगर वो हमेशा चिल्लाता हो तो फिर वो उसका कैरेक्टर ही है। ओके, अगर हमेशा चिल्लाता है तो कैसे है? वेरी नाइस। तीन चीज़ें यहाँ पे, सो रेयर, दूसरा है रेगुलर, और तीसरा इसके अलावा एक और चीज़ आता है, उसके लिए चर्चा करेंगे बाद में, कि बार बार क्रोधित हो जाता है, तो फिर तो हम कह सकते शॉर्ट टेम्पर्ड है वो। तो अभी सुग्रीव ने क्या यही गलती बार बार की? नहीं। उसको, सुग्रीव को जब युद्ध होने वाला था, जब वो सेतु बना रहे थे, तभी रावण ने अपने कुछ दूत भेजे, और रावण ने कहा, हे सुग्रीव, तुम वानरों के राजा हो, तुम्हारे पहले वाली तो राजा थे, वाली की और मेरी बहुत अच्छी तरह योजना संधि थी, और वही जो अच्छी संधि है, वही अच्छे एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, वह अभी मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, और मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम मेरा कुछ बिगाड़ो, तुम चले जाओ यहाँ से। तो तभी क्या हुआ, सुग्रीव को सोचना भी नहीं पड़ा। सुग्रीव ने कहा कि तुमने सीता माता का अपहरण किया है, इससे तुमने पहले ही गलत कार्य कर दिया है, और तो परिस्थिति के कारण एक गलती हो गई, पर वापस दूसरा प्रलोभन आया, तो उस प्रलोभन में वो बिल्कुल प्रलोभित नहीं हुए। तो कैसे होता है कि हमारा जो कैरेक्टर होता है, उसको हम तीन कह सकते हैं कि गुडनेस, दिस गुडनेस इज नॉट एग्जैक्टली मोड ऑफ गुडनेस, पर अच्छा व्यवहार है किसी का। फिर दूसरा है वीकनेस, कमजोरी, और तीसरा है विकेडनेस। विकेडनेस मतलब क्रूरता। तो जो व्यक्ति आज गुडनेस में है, जिसमें जिस प्रकार अच्छा चरित्र है, हम कह सकते हैं अधिकांश रूप से वो गलती करेगा ही नहीं। जो वीकनेस है वो कभी कभी गलती कर देगा।
जो विकेडनेस है वह क्या क्रूर है, वो बार बार गलती करेगा। तो अभी हम कह सकते हैं इन तीनों में सुग्रीव का कैरेक्टर कहाँ आता है? हाँ, यू कैन से इन दोनों के बीच में भी आता है। थोड़ा वीकनेस उसने दिखाया, पर वो एक ही बार वीकनेस दिखाया था। तो अभी जब एक ही बार वीकनेस दिखाया तो इसका प्रभु श्री रामचंद्र कभी उल्लेख भी नहीं करते। लक्ष्मण उनको डांटते हैं, पर लक्ष्मण भी कभी उसका उल्लेख नहीं करते बाद में, है तुमने ऐसे किया था, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया था, नहीं। तो क्या होता है, कभी कभी जब किसी से कोई गलती हो गई होती है और अगर वो व्यक्ति स्वयं स्वीकार करता है मैंने गलती की है, तो फिर वो व्यक्ति खुद चौकन्ना हो जाता है, वापस वो गलती नहीं करेगा। और फिर वो गलती की उसको हम याद बार बार दिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा और उसका संबंध और ख़राब हो जाता है। तो इफ़ अ मिस्टेक इज़ नॉट रिपीटेड, देन वी रिपीटिंग द रेफरेंस ऑफ द मिस्टेक इटसेल्फ इज़ अ मिस्टेक। किसने कोई एक बार गलती की है, 10 साल पहले उसने कुछ ऐसे किया, और हम बार बार उसी चीज़ को, तुम 10 साल पहले ऐसे किया था, 10 साल पहले ऐसे किया था। ठीक है, मैंने 10 साल पहले ऐसे किया था, पर तुम 10 साल से ऐसे कर रहे हो। मैं 10 साल पहले गलती की, पर तुम 10 साल से मुझे याद दिलाते जा रहे हो। तो ऐसे जब वीकनेस के कारण गलती हो जाती है जो रिपीट नहीं होती है, उसको कहते हैं फॉरगिव। उसका कैसे करना है, फॉरगेट एंड फॉरगिव, और फॉरगिव एंड फॉरगेट जैसे बोलना है। तो फॉरगेट का मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में कोई फॉरगेट स्विच तो है नहीं। तो फॉरगेट का मतलब क्या है, डोंट रिप्ले इट अगेन एंड अगेन। उसके बारे में उल्लेख मत करो, उसके बारे में कुछ विचार भी ज़्यादा मत करो। विचार आ जाएगा तो उस पर ज़्यादा चिंतन मत करो। तो ऐसे जब वीकनेस से कोई गलती हो जाती है तो वो व्यक्ति खुद सुधर जाता है। तो अभी हम दूसरे कैरेक्टर की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट आर वी डिस्कसिंग, कि हम सब प्रभु श्री रामचंद्र को हमारे हृदय में प्रस्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, पर कुछ चीज़ें हम में होती है जिससे कि हम कुछ गलत कार्य कर देते हैं। तो वो गलत कार्य क्यों हो रहे हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो अगर किसी परिस्थिति के कारण हो रहे हैं, अगर वो केवल परिस्थिति के कारण है तो फिर वो कभी रिपीट नहीं होगा। और फिर भी अगर परिस्थिति के कारण हो रहे हैं तो व्यक्ति को थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। जनरली जो रॉन्ग एक्शन, जो गलत कार्य होते हैं, तो जब हम कहते हैं वो किसी परिस्थिति के कारण हो सकते हैं, सिचुएशन, पर कभी कभी सिचुएशन में कुछ पीपल भी होते हैं, उस परिस्थिति में कुछ लोग होते हैं, सिचुएशन प्लस पीपल इन दैट सिचुएशन, उसके कारण भी कार्य होता है। तो अगर वैसी परिस्थिति है तो शायद उस परिस्थिति से हमको थोड़ा दूर रहना चाहिए। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो दूसरा कैरेक्टर हम देखते हैं कैकेयी का। कैकेयी ने भी एक गलती की। क्या गलती थी, किसी को पता है? इसने अब तक जवाब नहीं दिया है। यस, उसने अपने खुद के पुत्र को राजा घोषित करने राम जी को वनवास के लिए भेजा था। एक्सीलेंट, यस। और राम जी को वनवास में भेज दिया। और इसमें एक्चुअली इसमें बुरा क्या था? ये तो बुरा है बोलेगा, और बुरा क्या हो सकता है? उन्होंने मंत्रा से प्रभावित हुई। मंत्रा से प्रभावित हुए। ओके, दैट इज गुड, थैंक यू। तो अभी वेरी नाइस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कैकेयी ने गलती की, बहुत बड़ी गलती की। तो अभी तुलना करेंगे तो क्या होता है कि जैसे हम अलग अलग चुनाव करते हैं, तो अलग अलग परिस्थिति में जो चुनाव होता है, कुछ चॉइसेस से थोड़े से परिणाम होते हैं, कुछ चॉइसेस से बहुत बड़ा परिणाम हो जाता है। तो अभी सुग्रीव की गलती से क्या, शायद 1-2 दिन, 1 हफ्ते के लिए सीता का जो खोज था वो डिले हो गया। पर कैकेयी की गलती से क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो जब कैकेयी की जो गलती हुई वो क्यों हुई, तो एक है, और वो गलती हुई, गलती कब तक होती रही। तो क्या होता है कि अभी हम कह सकते हैं वो परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि वो जब सक्सेशन होने वाला था, दशरथ राजा थे, अगला व्यक्ति को राजा बनने वाला है, तो इन जनरल जब सक्सेशन होता है तो टेंशन होता है, वो स्वाभाविक ही है।
तो अभी अगला राजा कौन बनने वाला है, वो अगला राजा कैसे होगा। जब भी अभी यहाँ पे आजकल के समाज में इलेक्शन होता है तो टेंशन होता है कि अभी मैं पिछले महीने में जनवरी में, एक्चुअली मेरा जनवरी के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में मेरे बांग्लादेश में कई कार्यक्रम थे। पर तो काफ़ी 6-7 महीने से पहले कार्यक्रम प्लान किया था। पर वो एक हफ़्ता पहले वह बांग्लादेश के डिवोटीज ने बताया कि यहाँ पे अभी इलेक्शन हो रहा है, बहुत टेंशन है, तो आप अभी यहाँ पे मत आओ। तो बोले कि भविष्य में आ जाओ। तो आई विल गो प्रॉब्ली नेक्स्ट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आई माइट गो। पर क्या है, जब भी कोई ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है तब ये परिस्थिति ऐसी होती है कि टेंशन होता है थोड़ा सा। तो वो एक स्वाभाविक परिस्थिति थी। पर उस परिस्थिति में और कुछ हो गया कि अभी सुग्रीव जो अपने राज्यसभा में वो भोग में लग गए थे, तो कोई जानबूझ को कर उनको फंसाने का प्रयास नहीं कर रहा था। जो कोर्ट में डांसर्स थे, सिंगर्स थे, वो तो सिर्फ अपना पेशा कर रहे थे, जो उनका जॉब था वही कर रहे थे वो, पर उसमें वो फंस गए। तो कैसे होता है कि जब वीकनेस होता है वो उससे समस्या होती है, पर वीकनेस के साथ अगर कोई किसी व्यक्ति में विकेडनेस है, कोई व्यक्ति क्रूर है और वो किसी कमज़ोर व्यक्ति को पकड़ लेता है, तो फिर क्या होता है, तभी फंसना तभी परिणाम और ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे विकेडनेस किस में आ गया था, मंथरा में। तो मंथरा ने पूरा उसका जो मन है पॉइजन कर दिया। रामायण में बताया गया था कि कैसे कैकेयी जो थी, शी वॉज काइंड, जेंटल और वाइज। जो थी वो काइंड मतलब उसके हृदय के बारे में, जेंटल अपने वाणी के बारे में, और वाइज मतलब बुद्धि के बारे में। पर ये तीनों में वो विकृत हो गई। शी बिकेम क्रूअल, शी बिकेम हार्श और शी बिकेम फूलिश। तीनों, बुद्धि, हृदय और वाणी, तीनों में उसका पूरा परिवर्तन हो गया। और अभी ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं आउट ऑफ कैरेक्टर था। वो कैकेयी और कौशल्या में थोड़ा सा हमेशा टेंशन रहता था, बट वो दोनों साथ साथ में रह रहे थे, ऐसे कुछ इतनी बड़ी समस्या कभी नहीं थी। और जब इस तरह से हो गया, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी वो, किसी की। अभी दशरथ महाराज ने उसे याचना की, अगर भरत को राजा बनाया तो राजा बनाओ, पर राम को वनवास क्यों भेजना है, राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो अभी कैकेयी ने पूरा उसका मन भर दिया था। उसने कहा था कि अगर जब तक राम राज्य में रहेंगे तब तक न तो भरत राज्य स्वीकार करेंगे, और भरत ने स्वीकार किया तो अभी जो प्रजा है स्वीकार नहीं करेगी। तो इसलिए आपको राम को बाहर भेजना ज़रूरी है। और बड़े दशरथ महाराज ने कहा मैं राम के बिना जी नहीं पाऊंगा, पर उसका भी उसने परवाह नहीं की। और जब सारा जो समाज था उस समय सब उसकी निंदा कर रहा था, भर्त्सना कर रहा था, तो क्या हो गया कि सी nobody believes that they are bad people। साधारणतः बहुत कम लोग होते हैं सोचते हैं कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। हम सब इस तरह से कुछ विचार करते हैं, तर्क करते हैं, जिससे कि हम खुद को बताते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में रैशनलाइज। सो व्हेन वी रैशनलाइज वी टेल रैशनल लाइज। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई पति है, वो सिगरेट पीता है, उसने अपनी पत्नी को बोला मैं छोड़ दूंगा सिगरेट पीना, और फिर वो पत्नी कमरे में आती है और उसको सब धुआं लगता है, दिखाए तुम सिगरेट क्यों पी रहे थे। एक्चुअली मैं सिगरेट में भोग के लिए पी रहा था, ये कमरा बहुत ठंडा था, तुम्हारे लिए गर्म करने के लिए पी रहा था। इट्स ए टोटल लाई। बट क्या है कि जब व्यक्ति रैशनलाइज करता है तो वो अपनी बुद्धि का इस तरह से इस्तेमाल करता है, वो दूसरों को दिखाना चाहता है कि मैं जो है सही हूँ। सी टू लाई इज बैड, टू लाई इन अ वे दैट अदर्स बिलीवर्स इज वर्स। क्योंकि क्या हो गया, मैं खुद झूठ बोल रहा हूँ तो उससे मुझे कुछ बुरा कर्म मिलेगा, पर मैं दूसरों को उससे गुमराह करता हूँ तो शायद मुझे अभी कुछ फ़ायदा होगा, पर बाद में उससे
और परिणाम होने वाला है. बट टू लाई इन अ वे दैट वी आवरसेल्व्स बिलीव आवर लाइज, दैट इज द वर्स्ट. जब हम ऐसे झूठ बोलते हैं कि खुद ही हमारे लाइज को बिलीव करने लगते हैं. दैट्स वाई ये क्रिमिनोलॉजी में, क्राइम स्टडीज में इसको कहते हैं ऑनेस्ट लायर्स. ऑनेस्ट लायर्स मतलब क्या? वो झूठ बोले तो झूठी है, पर वो खुद ऐसे विश्वास कर ले कि मैं जो कर रहा हूँ सही, मैं जो बोल रहा हूँ सही ही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही ही हूँ. तो कैकेयी को लग रहा था कि ये सारा एक षड्यंत्र है मेरे पुत्र को उसका राज्य अधिकार न देने के लिए, उससे वो राज्य अधिकार छीनने के लिए. और उसको लग रहा था कि मैं ये सब मेरे पुत्र के लिए कर रही हूँ और दुनिया मुझे कोई समझ नहीं रही है, पर मैं मेरे पुत्र के लिए ज़रूर करूँगी. तो उसकी जो सेल्फ राइचियसनेस था उसमें, इसी कारण क्या हो गया, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी. बट फॉर्च्यूनेटली दशरथ महाराज की बात सुन नहीं रही थी, वशिष्ठ मुनि की बात नहीं सुन रही थी, वो सुमंत्र की बात नहीं सुन रही थी, किसी की बात नहीं सुन रही थी. पर उसका जो ये मोह था कि मैं जो कर रही हूँ वो भरत के कल्याण के लिए कर रही हूँ. और वो जो धारणा थी वो कब तक रही? जब तक भरत नहीं आया. और जब भरत वापस आ गए तो तभी एक टक्कर हुई. उसके मन में जो इमेजिनरी भरत था और जो रियल भरत था. और जब वो टक्कर हुई तो भरत ने जब सुना, कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिता का देहांत हो गया, अभी राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो क्या हो गया, कैसे हो गया? और जब उसने सुना, भरत ने जब पता है, भरत बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर पाए कि मेरी माँ ऐसा कार्य कर सकती है. न केवल मेरी माँ ऐसा कार्य कर सकती है, मेरी माँ ऐसा कार्य कर सकती है और वो ऐसा बता रही है कि सब मेरे लिए किया है, और वो अपेक्षा कर रही है कि मैं इससे प्रसन्न हो जाऊंगा. तो सी व्हेन समबडी डज समथिंग टेरिबल, कोई व्यक्ति बहुत ही बुरा कार्य करता है और वो कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए कार्य किया है, और वो ऐसे अपेक्षा करे कि हम उनकी सराहना करेंगे. तो इट रेजेस अ क्वेश्चन, नॉट ओनली ये किस प्रकार का व्यक्ति है, पर ये क्या सोचता है मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं कि मैं ऐसे कार्य से प्रसन्न हो जाऊंगा. ये कैसे सोच सकते हो तुम? तो तभी भरत ने कहा कि तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, तुम जो विनाश की देवी है महाकाली, वो हमारे कुल में, हमारे कुल का विनाश करने के लिए अवतारित हुई व्यक्ति है तुम. तो जब कैकेयी ने भरत के वचन सुने तो तभी उसका जो मोह था टूट गया. और जब मोह टूट गया तो फिर क्या हो गया, फिर उसको बड़ा विलाप हुआ. शी टेरिबली रिग्रेटेड, ये मैंने क्या किया. तो अभी क्या था यहाँ पे, एक तरह से वो वीकनेस, विकेडनेस, कैकेयी में वीकनेस था, मंथरा का प्रभाव से विकेडनेस भी आ गया उसमें, पर भरत का गुडनेस था. तो एक तरह से इस दिशा में खींची गई वो, पर बाद में जब भरत आ गए तो भरत के प्रभाव से वो इस दिशा में खींची होगी. तो कभी कभी क्या होता है कि हम सब में कमज़ोरी होती है, अगर कमज़ोरी है हम में तो वो उससे हम डेंजर में होते हैं. पर उसके साथ साथ अगर हमारे कमज़ोरी को एक्सप्लॉइट करने वाला कोई होगा तो उससे हमारा खतरा और बढ़ जाता है. कोई विद्यार्थी है, कॉलेज में जाता है, अभी आजकल के सिलेबस बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, टेंशन होता है. तो अगर कॉलेज में वो टेंशन होता है उनको, और उन्हें लगता है कि चलो यहाँ पे हमको ये ड्रग्स मिलते, थोड़ा ड्रग्स ले लेता हूँ मैं, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा. उससे पहले रिलैक्स हो जाता है, बाद में एक्स हो जाता है व्यक्ति तो पूरा टूट जाता है उससे. पर एक है कि खुद ही कमज़ोरी के कारण प्रलोभित हो जाता है. पर मान लीजिए उसी कॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, स्टाफ हो सकता है, कोई व्यक्ति होता है, वो देख रहा है कौन से विद्यार्थी कमज़ोर है, जो थोड़े मेंटली वीक है, और बराबर उनको जाके वो ड्रग्स देता है. तो क्या होता है कि वो एक बार फ्री सैंपल देगा, दूसरी बार फ्री सैंपल दे देगा, और फिर वो व्यक्ति पूरा एडिक्ट, वो जो विद्यार्थी पूरा एडिक्ट हो जाएगा.
तो वीकनेस है, ये कभी कभी हम उसको टाल नहीं सकते। हम सब में कुछ वीक कमज़ोरियाँ हैं, पर अगर हम हमारे संग के बारे में चौकन्ना रह सकते कि अगर हम जानते हैं कि मुझ में कमज़ोरी है, तो कोई लोग अगर मेरी कमज़ोरी को शोषण करना चाहते, एक्सप्लॉइट करना चाहते, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो इट इज़, मान लीजिए कि कोई शराबी है और शराब छोड़ना चाहता है, तो क्या है, अभी मान लीजिए वो शराबी व्यक्ति है, उसका घर एक बार के बाजू में ही है, तो क्या होगा, अब वो कितना भी उसका दृढ़ संकल्प हो कि मैं शराब नहीं पीने वाला हूँ, पर क्या है कि सबको कभी कमज़ोरी आ जाती है, कुछ ये हो जाता है, वो जाता है, तो इच्छा आ जाती है। तो अगर बार उसे घर के बाजू में ही है, तो बार में जाने के लिए कोई बार नहीं रहेगा उसको तुरंत चले जाएगा वो। तो ऊपर से अगर, तो वही, तो अगर वो सीरियस है तो क्या है, उस सिचुएशन में न जाए। मतलब क्या है, दे हैव टू रिलोकेट देयर हाउस। तो अगर क्या है, अगर कमज़ोरी है, तो अगर कोई कुछ चीज़ हमारे कमज़ोरी को आसान बना देता है, तो उस चीज़ से दूर रहना है। पर अगर मान लीजिए उसके साथ उसको कोई मित्र है जो बहुत शराब पीता है और वो तो उसको बार बार बुलाते रहता है, तो ये अगर किसी को शराब छोड़ना है तो खास करके अपने मित्रों को बदलना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि दूसरों को ठुकरा देना है। कई बार कहते हैं कि वी आर नोन बाय द पीपल वी एसोसिएट विथ। वो सही है, पर एक्चुअली द मोर प्रिसाइज ट्रूथ इज वी आर नोन बाय द पीपल आवर माइंड एसोसिएट्स विथ। हम अनेक लोगों से मिलते हैं, पर कौन से लोगों का संग हमारा मन बार बार विचार करते रहता है। चाहे अभी आप सबने शायद अजामिल की कहानी सुनी होगी। तो अगर कोई ऐसे बुरे व्यक्ति से मिलता है, पर 5 मिनट के लिए मिलता है, पर वही उसके मन में बोलता है, वो बोलता है कि कोई व्यक्ति कोई करप्ट व्यक्ति है और वो किसी को प्रलोभित कर रहा है, आप ही कर सकते हैं, आप ये कर दो, मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा। तो अभी वो 5 मिनट के लिए मीटिंग हो सकता है, पर उसके मन में अगर वो बार बार रिप्ले करते रह रहा है, तो क्या होगा, वो बड़े ही ऑनेस्ट लोगों के साथ बैठा है, पर उसका मन किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, वह महत्वपूर्ण है। तो अभी क्या हो गया, ये हमें बेसिकली वीकनेस जब होता है हमें, तो उसके लिए क्या करना है, हमें चेक करना है कि हम कौन से सिचुएशंस में जा रहे हैं और कौन से एसोसिएशन में रह रहे हैं। तो अगर ऐसे सिचुएशंस है जिसमें हम कमज़ोर और हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन से जहाँ तक हो सके दूर रहे। ऐसा एसोसिएशन है जो अगर हमारे कमज़ोरी को एक्सप्लॉइट करता है, तो उससे तो बिल्कुल दूर रहना ज़रूरी है। अगर कई कहती थी कि मैं भरत को बुलाना चाहता हूँ तुरंत, अगर मान लीजिए कई बार से ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज होते हैं कि अगर ऐसे नहीं ऐसा हो जाता था, ये व्यक्ति ऐसा कार्य करता था, वैसा कार्य करता था, तो फिर क्या होता था। तो अगर मान लीजिए भरत वहीं पे होते थे, तो फिर क्या होता था, कई का और किसी व्यक्ति में विश्वास नहीं था, पर भरत में तो विश्वास था, उसको लगा था भरत के लिए कार्य करिए, तो शायद वो रुक सकता था, वो इतना दूर तो नहीं आ सकता था। तो क्या होता है कि द इम्पोर्ट समटाइम्स वहाँ पे परिस्थिति ऐसी होगी, भरत के हाथ नहीं था। तो इफ वी कैन नॉट कीप wicked people away, then at least we can keep good people close to us. कभी कभी हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि कोई बॉस होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई मित्र होगा, शायद वो क्रूर है, ऐसा संबंध है, ऐसी परिस्थिति है कि हम उनके साथ ही काम करना है, तो उनके बातों से कभी हम प्रभावित हो जाते हैं। तो अगर उनको दूर नहीं रख सकते हैं, तो हमें क्या करना है, कम से कम जो लोग अच्छे हैं उनका संग करना है, उनसे जो हो सके हम प्रभावित होने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी वहाँ पे भरत नहीं था, तो कई ने एक तरह से 2 गलतियाँ की। पहली गलती की कि उसने जो भी मंथरा ने बताया सब कुछ सुन लिया, सो शी जस्ट एक्सेप्टेड वॉट एवर मंथरा सेड। और एक तरह से वो गलती कह सकते अनिवार्य थी, एक तरह से वो अंडरस्टैंडेबल थी, गलती अनिवार्य नहीं है, इनएविटेबल नहीं, बट अंडरस्टैंडेबल थी, क्योंकि मंथरा चिड़चिड़ी थी थोड़ी, पर इसके पहले उसने भी कैसी इतनी क्रूरता नहीं दिखाई थी, इतना मैनिपुलेटिवनेस वगैरह दिखाया नहीं था उसने कभी। तो समझ सकते हैं कि पर तभी उस दूसरी गलती थी कही कि
उसने किसी और को कंसल्ट नहीं किया। दशरथ की प्रिय रानी थी वो, कब दशरथ को यहाँ को जाके पूछ सकती थी कि इतनी जल्दी क्या है, राम को आप क्यों बना रहे हो राजा, युवराज बना के राजा बना रहे हो। अगर उसको लग रहा है कि दशरथ भी षड्यंत्र में है तो वशिष्ठ मुनि को जाकर पूछ सकती थी। वशिष्ठ मुनि थे वो राज गुरु थे, वो वहाँ पे वो उनके कुल के गुरु थे। तो भरत राजा बने या राम राजा बने, उनके पद को कोई खतरा नहीं था। तो इसीलिए ही हैड नो एक्स टू ग्राइंड, उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं था, उनको जाके पूछ सकती थी। पर क्या हुआ था, उसने वैसे नहीं किया। तो हमें हमारे जीवन में कभी दुरुपदेश देने वाले कभी कभी लोग आ जाते हैं और उनको हम टाल नहीं सकते, पर जो अच्छे लोग हैं, सदुपदेश दे सकते हैं, सत्संग दे सकते हैं, कम से कम उनको पास रखने का प्रयास करना चाहिए। मैं अमेरिका में टेक्सास में किसी भक्त के घर में गया था, वहाँ पे एक कोट था, ऑल आवर गेस्ट्स मेक अस हैप्पी, सम बाय अराइविंग एंड सम बाय डिपार्टिंग। तो हमारे जीवन में ऐसे होता है कई बार। अगर हमारे रिलेशनशिप्स हम कहते हैं, हमें शायद नहीं कहना है कि कोई व्यक्ति क्रूर है, कोई विकेड है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव हम पे नेगेटिव हो जाता है। कुछ लोग आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो फिर हमारे सारा उत्साह चला जाता है, सारा भय आ जाता है, नकारात्मक भाव आ जाता है। अभी शायद वो व्यक्ति जानबूझ के कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो सेकेंडरी है, पर ऐसे हो जाता है कभी कभी कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप। तो हमें क्या करना है, वह देखना है कि कौन से लोग हैं जिनके संग से मुझे शक्ति मिलती है, जिनसे प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है, और क्या करना है, हमें ये जो संग है ये ज़्यादा रखने का प्रयास करना है। नीड नॉट बी इन क्वांटिटी बट इन क्वालिटी। जो लोगों से मुझे शक्ति मिल रही है वह संग मुझे और लेना चाहिए, न कि जिन लोगों से मुझे शक्ति जा रही है। तो दिस इज, तो अभी क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी में कमज़ोरी है तो वो कभी गलती कर बैठता है, पर अगर वो केवल परिस्थिति के कारण गलती हुई है या किसी के प्रभाव के कारण गलती हुई है तो वो गलती वो दोहराएगा नहीं। क्या कहीं ना कोई गलती दोहराई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी इन द वैदिक ट्रेडिशन, जैसे मैं बताया था कि देर आर 2 वेज। जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको सही मार्ग पे लाने के लिए 2 पद्धतियाँ हैं, एक है शास्त्र और दूसरा है शस्त्र। शास्त्र मतलब विजडम और शस्त्र मतलब वेपन। तो अभी किसी में कमज़ोरी है तो उनको सदुपदेश देकर, उनको जैसे सुग्रीव को तारा ने बताया, हनुमान जी ने बताया, लक्ष्मण ने बताया, मान गए। अभी कई को भरत ने बताया, मान गए। तो ऐसे लोगों को सही सदुपदेश नहीं पर सही व्यक्ति सदुपदेश दिया तो वो मान जाते हैं। पर जो क्रूर व्यक्ति होते हैं, जो विकेड होते हैं, वो शस्त्र से नहीं मानते हैं, तो उनको शास्त्र ही लगता है। नहीं, वो शास्त्र से नहीं मानते हैं, उनको शस्त्र ही लगता है। तो कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभी रावण देख लीजिए। तो रावण की जो क्रूरता थी वो वन टाइम नहीं थी। रामायण में वर्णन आता है कैसे उसने जो सीता के साथ किया था वो पहले वेदवती के साथ किया था, रामभाग के साथ करने का प्रयास किया था। तो बहुत अत्याचार वो करते आ रहा था। और जब अभी ऐसा कार्य किया, तो मैं अभी साउथ इंडिया में था, तो वहाँ पे मैं एयरपोर्ट में बैठा था, तो तभी एक व्यक्ति आ गया, मैं आरपीसी से हूँ। बोला, अच्छा आरपीसी क्या है? बोले, रावण प्रोटेक्शन कमेटी। तो वो क्या कहते कि वास्तव में कहते कि रावण एक अच्छा व्यक्ति था, पर क्या कि ये आर्यन और द्रविडियन जो है, ये आर्यन इन्वेजन थियरी नाम का एक थियरी ब्रिटिश लोगों ने डाल दिया था। उसका कोई एक्चुअल बेसिस नहीं है, हिस्ट्री में नहीं है, जेनियोलॉजी में, जेनेटिक्स में नहीं है, कहीं भी नहीं है, आर्कियोलॉजी में नहीं है, पर फिर भी वो बहुत वाइड स्प्रेड पॉपुलर हो गया है वो। तो क्या हो गया, तो कहते हैं कि ये राम और रावण में युद्ध था, वो वास्तव में सत और असत में युद्ध था, और बिटवीन द वर्चुअस एंड द विशियस, अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति में था।
उन्होंने कहा है कि एक्चुअली ये जो है ना, राम जो था आर्यन था और रावण द्रविडियन था। तो ये सारे आर्यन लोगों ने द्रविडियन लोगों को बदनाम कर दिया इससे। तो रावण अच्छा व्यक्ति था और उसको इतना बदनाम कर दिया। तो रावण के अच्छे नाम को प्रोटेक्ट करने की हमारी कमेटी है, रावण प्रोटेक्शन कमेटी। तो अभी रावण कैसे अच्छा, उसने सीता का अपहरण किया। और कैसे है कि जब कोई व्यक्ति गलती भी करता है तो कुछ कुछ गलती, जैसे हम कहते हैं सर्कमस्टेंशियल हो सकती है, परिस्थिति के कारण हो जाती है। पर कैसे होता है कि एक है मिस्टेक और दूसरा है मिसडीड। तो अगर कोई पूरा षड्यंत्र बनाता है तो षड्यंत्र को मिस्टेक नहीं बोल सकते। षड्यंत्र बना के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब हम कोई कमजोरी में कोई कार्य कर लेता है तो क्या होता है कि मतलब उस समय क्रोध आ गया, उस समय लोभ आ गया, उस समय मोह आ गया, उस समय में उस प्रभाव के कारण ने कर दिया वो। पर जब कोई पूरा षड्यंत्र बना रहा है कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे बोलो, मैं वहाँ पे जाऊँगा, फिर तुम ये करोगे, मैं वो करूँगा, तो वो केवल एक पल में कुछ पल के लिए कमजोरी आके वो कार्य नहीं हुआ है। तो द डिफरेंस बिटवीन वीकनेस एंड विकेडनेस, दो मेन फर्क है कि जब वीकनेस होता है तो एक आधे बार हो जाता है वो। अगर बार बार वो हो रहा है, और न केवल बार बार हो रहा है, वो जो हो रहा है वो पूरा जानबूझ के डेलिबरेटली विथ प्लानिंग हो रहा है, तो फिर वो विकेडनेस ही है। तो इसलिए रावण को सीता का अपहरण करना ये कोई गलती नहीं है, ये एक पूरा दुष्कर्म है। तो पर अभी रावण का भी प्रभाव में हम देखते हैं कैसे होता है कि अगर हम कहते हैं गुडनेस, वीकनेस और विकेडनेस, तो अभी रावण विकेडनेस की जगह में था और उसके साथ भी एक व्यक्ति था जो गुडनेस में था। कौन था? विभीषण। तो अभी जो विभीषण था, विभीषण ने रावण को उपदेश देकर उसको सही मार्ग में लाने का प्रयास किया, कई बार प्रयास किया, पर जो रावण था वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं था। विभीषण को उसने पूरा ठुकरा दिया। विभीषण का जो अपने बोला, अगर तुमको लगता है मेरा कोई स्वार्थ है इसमें जो मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं केवल हमारे असुर कुल के, राक्षस कुल के कल्याण के लिए बता रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मुझे मेरे स्वार्थ है, मेरा मुकुट तुम्हारे सामने रख देता हूँ। मुझे मुकुट नहीं चाहिए, मुझे कोई राज्य आदर नहीं चाहिए, पर मुझे हमारे कुल का कल्याण चाहिए। तो रावण ने ये मुकुट को ठुकरा दिया। तो कैसे होता है कि, और वो क्या कहने लग गया विभीषण को, यू आर अ ट्रेटर, यू आर अ कॉवर्ड एंड यू आर अ ट्रेटर। पहले तो तुम कायर हो, तुम शत्रु से डरते हो, और फिर तुम वफादार नहीं हो, तुम गद्दार हो। तो क्या होता है कि जब व्यक्ति क्रूर होता है तो वह न केवल सदुपदेश नहीं सुनता है, वह सदुपदेश जो देता है उनको ही बुरा कहने लगता है, उन पे ही आक्रमण करने लगता है। जैसे कहते हैं उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये। उनको उपदेश देने से कुछ ज़्यादा फायदा होता नहीं है। तो ऐसा कोई व्यक्ति होता है, उनको उपदेश देने से कुछ फायदा नहीं होता है, तभी शस्त्र का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो भी प्रभु श्री रामचंद्र ने युद्ध किया, युद्ध के पहले कई मौके दिए। हनुमान जी ने पहले चेतावनी दी थी, फिर अंगद की चेतावनी दी, विभीषण ने चेतावनी दी थी। वास्तव में अगर हम देखते हैं कि रावण को 10 लोगों ने अलग अलग प्रकार से चेतावनी दी थी, पर क्या था, ही हैड 10 हेड्स एंड 0 ब्रेन्स। 10 सिर थे पर दिमाग दुर्भाग्यवश से नहीं था। अगर कोई रास्ते पे जा रहा है और यहाँ पे बोल रहा है कि साइन है, डेंजर है, डेंजर है, डेंजर है, वो ड्राइविंग करते जा रहा है, 10 बार साइन देख रहा है, फिर भी आगे जा रहा है, तो फिर उसका विनाश ही होने वाला है। तो कभी कभी ऐसे जिसमें क्रूरता है, जो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, बार बार वही कार्य करते रहता है, जो सदुपदेश देते हैं उनको, वो जो है उनको ही निंदा करता है, उन पे ही आक्रमण करता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, ज़रूर डिसिप्लिन करना पड़ता है, उसको शस्त्र इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पर
उसको भी मौका दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि पहले से हम फैसला करते ये व्यक्ति विकेड ही है, नहीं। क्या होता है, कई बार होता है हमारे साथ, ऐसा होता है कि जो व्यक्ति हमको अच्छा लगता है उसकी गलतियों को हम छोटा मान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे है कि कोई व्यक्ति बहुत खा लेता है, अगर हमको व्यक्ति अच्छा लगता है तो उसको बहुत भूख लगी होगी, अगर हमको वो अच्छी लगता है तो कितना खाता है ये, तो बकासुर का अवतार लगता है ये तो वही कार्य है, पर हमारे लाइक्स और डिसलाइक से हम दूसरा इंटरप्रिटेशन देते हैं। तो अभी ये शब्द सुना है, गॉसिप। गॉसिप, आपको पता है गॉसिप कब होता है? तो दो कारण या दो चीज़ों का संयोग होना चाहिए कि व्हेन वी हियर समथिंग वी लाइक, जब हम सुनते हैं कोई चीज़ हमको अच्छी लगती है, अबाउट समवन वी डोंट लाइक। जब हम कोई ऐसी चीज सुनते हैं जो हमको अच्छी लगती है ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हमको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर क्या होता है, तुरंत अच्छा ये व्यक्ति ऐसे दिखाता है कि कितना अच्छा व्यक्ति है, पर अभी मुझे पता चल गया असली का चरित्र क्या है इस व्यक्ति का। और फिर इन पब्लिक इंटरेस्ट, सबके कल्याण के लिए मैं बता दूंगा दुनिया को ये व्यक्ति कैसा है। तो अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है, कि क्या है कि अगर किसी को हमको वी डोंट डिसलाइक दैट पर्सन, तो उसके बारे में कुछ बुरा भी सुनते हैं हम, शायद हमारे मन को मसाला अच्छा लगता है, पर फिर हम बोलेंगे ठीक है ये शायद मुझे बोलने की किसी को ज़रूरत नहीं है, हम फैलाए कि नहीं, या अगर हम फिर थोड़ा क्रॉस चेक करने का क्या सही है। पर तो कई बार जब हम कौन वीक है और कौन विकेड है, ये केवल हमारे लाइक और डिसलाइक से हमें फैसला नहीं करना है कि मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए ये व्यक्ति क्रूर व्यक्ति है, मुझे अच्छा लगता है तो ये व्यक्ति कमज़ोर है। ऐसे नहीं, हमें एक्चुअली कभी कभी पूरा प्रसंग का समझने का प्रयास करना है, व्यक्ति ने क्यों ऐसे कार्य किया है, शायद दूसरों को पूछना है और फिर उसके बाद में निष्कर्ष लेना है। तो हम सब में भी शायद कुछ चीज़ों में विकेडनेस हो सकता है, तो होपफुली नहीं होगा, पर अगर होगा तो हमें खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा उसके लिए। बट ऐसे नहीं कि हमें खुद के विकेडनेस खुद में नोबडी इज़ एवर लॉस्ट। आई कंक्लूड विद दिस पॉइंट। कैसे है कि किसी में क्रूरता भी क्यों ना हो, ऐसे नहीं कि वो व्यक्ति कभी बच नहीं सकता है, परिवर्तित नहीं हो सकता है, समय लगेगा उसके लिए। उस व्यक्ति में थोड़ी सी भी इच्छा है परिवर्तित होने के लिए तो वो ज़रूर परिवर्तित हो सकता है, और अगर इस जीवन में कोई इच्छा नहीं है तो अगले जीवन में इच्छा आ जाएगी। तो जो है कि नो वन इज़ एवर लॉस्ट फॉर एवर। प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि जो क्रिश्चियन धर्म में होता है, अब्राहमिक रिलीजन में जनरल, कि कहते हैं कि अगर आप भगवान को जीसस को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप हमेशा नरक के लिए चले जाओगे, तो इटर्नल डैम्नेशन होता है। तो प्रभुपाद जी को पूछा था इज़ हेल इटर्नल, क्या नरक हमेशा के लिए होता है? तो प्रभु जी ने कहा कि नथिंग एक्सेप्ट एक्सटैटिक लविंग सर्विस टू कृष्णा इज इटर्नल। भगवान कृष्ण की प्रेममय सेवा, आनंदमय प्रेममय सेवा, इसके अलावा कुछ भी चीज़ शाश्वत नहीं है, कोई और चीज़ सनातन नहीं है। कोई व्यक्ति क्रूर है, उसे नरक में जाना पड़ेगा, उसकी क्रूरता शाश्वत नहीं है, उसको नरक में जाना है वो भी शाश्वत नहीं है। तो एवरीबडी इज़ रिफॉर्मेबल, हर व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है उसका, पर हर एक व्यक्ति को उचित क्या स्ट्रैटेजीज़ है। तो अगर हम खुद को ऐसी परिस्थिति में डालेंगे, ऐसे संग में डालेंगे जिससे कि हमारी जो अच्छाई उससे ऊपर आ जाएगी, तो फिर क्या है, हम परिवर्तित और तेज़ी से हो जाएंगे। हम सब में कमज़ोरियाँ हैं, पर जो प्रभु श्री रामचंद्र को हमारे हृदय में लाना है उसके लिए क्या करना है, हमारा एसोसिएशन और हमारा सिचुएशन जहाँ तक हो सके हमें गुडनेस में लाने का प्रयास करना है। जब भी आप सत्संग में आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो अच्छे संग में आ रहे हैं। आपके घर में भी अगर आप मंदिर है, ऑल्टर बना सकते हैं, वहाँ पे कुछ कीर्तन कर सकते हैं, तो शायद हमारा पूरा घर, हमारा परिवार, हमारा वातावरण, हमारा ऑफिस, शायद हम उसको पूरा स्पिरिचुअल नहीं बना सकते, बट इवन इफ वी कांट मेक आवर होल वर्ल्ड स्पिरिचुअल, वी कैन मेक आवर वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड स्पिरिचुअल। हमारे घर में एक कमरा या एक इलाका जहाँ पे हम वी कैन हैव
भगवान के चित्र हो सकते हैं, वहाँ पे कोई अगरबत्ती लगा सकते हैं, कुछ अच्छा म्यूज़िक रख सकते हैं, तो थोड़ा हमारा सिचुएशन हम बदल सकते हैं। और इससे क्या होगा, विल फाइंड द गुडनेस विद इन अस विल स्टार्ट राइजिंग। और जिस हद तक हम प्रभु श्री रामचंद्र को हमारे हृदय में लाने का प्रयास करेंगे, का जप करके, कीर्तन करके, सत्संग करें, तो उससे क्या होता है, ये मैं 3 चीज़ें बताई कि गुडनेस, वीकनेस और विकेडनेस, पर इन सब के ऊपर है वास्तव में गॉडलीनेस। गुडनेस और गॉडलीनेस एक ही है, पर उसमें फ़र्क है मात्रा में। तो कैसे है, ये एक तरह से सीढ़ी है। अगर हम भगवान को पकड़ लेते हैं तो हम कहीं भी हो सकते हैं, वहाँ से हम विकेडनेस से भी ऊपर जा सकते हैं, वीकनेस से भी ऊपर जा सकते हैं, और गुडनेस से भी ऊपर जा सकते हैं। तो भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो उससे जहाँ से भी है हम, वहाँ से हम ऊपर उठ सकते हैं। अपिचेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। भगवता बताते हैं कि मान लीजिए हम किसी सागर में फंसे हुए हैं, सागर से तैर के बाहर जाना बड़ा मुश्किल है, पर हमको कोई नाव मिल जाती है, और नाव में अगर हम जब बैठ जाते हैं तो नाव हमें सागर से परे लेके जाएगी। तो उसी तरह से क्या है कि हमें कमज़ोरियाँ हो सकती है, हमें क्रूरता हो सकती है, और वो सब इतनी बड़ी हमको लग सकती है कि वो एक सागर के समान है, तो उसको तैर के जाना बड़ा मुश्किल लगता है। पर अगर हम भगवान की भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, तो भगवान की जो भक्ति है कि जो हमारा वो क्या है, एक नाव के समान है। जो हमारे वीकनेसेस है या विकेडनेस भी है, वो क्या है, भले ही वो एक सागर के समान है, पर जो डिवोशन है, जो भक्ति है, वो एक नाव के समान है। तो अगर हम बस उस नाव में बैठने का प्रयास करेंगे, तो वो नाव हमें भगवान की ओर ले जाएगी, और नाव के द्वारा हमारे जो आत्मा के सारे सद्गुण हैं, वो सारे बाहर आ जाएंगे। सो वी विल बिकम बेटर, एंड वी विल बिकम बेटर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेकिंग आवर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड बेटर। तो सारांश में हमने आज 4 पॉइंट्स की चर्चा की। हम देखा कि किस तरह से जब हम कार्य कर रहे हैं, तो हम टॉपिक था कि हाँ, व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू। जब हम कार्य करते हैं तो क्यों हम कैसा कार्य करते हैं, और उसको हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो उसके बारे में देखा कि सिचुएशन, परिस्थिति, और डिस्पोजिशन, मनस्थिति, ये दोनों जो है दे कंट्रीब्यूट टू आवर एक्शंस। तो इसके द्वारा हमारा कार्य फैसला होता है। तो अगर हमको कार्य को बदलना है तो क्या करना है, इन दोनों का प्रभाव किस तरह से हो रहा है, वो चेंज देयर इन्फ्लुएंस, इनका जो प्रभाव है उसको हमें बदलना है। तो हमने 3 कैरेक्टर्स की चर्चा की। कौन से 3 कैरेक्टर्स थे, सुग्रीव, कैकेयी और रावण। तो अभी इन तीनों में सुग्रीव में क्या था, गलत कार्य किया उन्होंने, क्यों किया था, वीकनेस, कमज़ोरी के कारण। तो कुछ समय तक रहा, पर जैसे उनको अच्छा संग मिल गया तो वो सही मार्ग पे आ गए, और पुनः उसने दोहराया नहीं। अभी कैकेयी का क्या था, वीकनेस प्लस विकेडनेस। तो मंथरा का प्रभाव था, उसके अनुभव काफ़ी समय तक रहा, और जब भरत आ गए तभी वो उससे प्रभाव, तो वीकनेस का प्रभाव कैंसिल हो गया गुडनेस से। यहाँ पे विकेडनेस का प्रभाव कैंसिल हो गया गुडनेस से, तो उसके समय लगा। पर रावण के लिए क्या था, वो विकेडनेस ही था, और विकेडनेस से क्या हो गया, गुडनेस से वो गुडनेस का प्रभाव कैंसिल नहीं हो गया, उन्होंने उसको उसी गुडनेस को ठुकरा दिया। तो जब ऐसे हो रहा है तो अभी क्या होता है, जब किसी में वीकनेस है तो उसको किस तरह से हम सुधार सकते हैं, शास्त्र से, विजडम से। वो विजडम क्या है कि हमें खुद देखना है मेरी परिस्थिति से क्या प्रभाव हो रहा है, मुझे मेरे संग से क्या प्रभाव हो रहा है, और उसके अनुसार हमें अन्वेषण करना है, चेंज करना है, परिवर्तन करना है। और विकेडनेस अगर होता है तो क्या करना पड़ेगा, शस्त्र, डिसिप्लिन करना पड़ेगा, किसी और को डिसिप्लिन करना, खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। और फिर आखिरी पॉइंट हमने देखा कि गॉडलीनेस, कि जब हमको खुद को चेंज करना है तो एक है कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उससे जहाँ भी है उससे हम इस तरीके से एक अपवर्ड पुल हमको मिलता है,
और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो एसोसिएशन है और हमारा सिचुएशन है, जितना हो सकता है वह फेवरेबल बना सकते हैं। तो इसके द्वारा क्या होगा, हम सब वी ऑल कैन बिकम बेटर एंड वी कैन, हम न केवल अच्छे और हो सकते हैं पर एंड वी कैन बिकम बेटर इंस्ट्रूमेंट्स। भगवान चाहते हैं कि वो हमारा कल्याण करे और हमारे द्वारा दूसरों का कल्याण करे। बिकम बेटर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेकिंग आवर वर्ल्ड बेटर, या आवर वर्ल्ड बड़ा बुरा लगता है तो आर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड बेटर। तो इस तरह से वी ऑल कैन हेल्प एस्टैब्लिश, हम हमारे हृदय में राम राज्य एस्टैब्लिश कर सकते हैं और वो दूसरों को भी मदद कर सकते परिवर्तन करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है? वी हैव टाइम। तो आपने बोला ना कि अगर वीकनेस होती है तो उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, तो वीकनेस किस हद तक किसी की माफ़ कर सकते हैं? मतलब वीकनेस भी तो उसका कुछ क्राइटेरिया की वीकनेस एज इन मतलब किस हद तक की वीकनेस उसको वीकनेस कंसिडर करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। तो अभी कैसे होता है कि थोड़ा विस्तारित विषय है बट इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो रॉन्ग डूइंग होता है, किसने कोई गलत कार्य किया है, तो ब्रॉडली इसके 3 कारण हो सकते हैं। एक है सर्कमस्टेंशियल, पूरा परिस्थिति के कारण ही हुआ है वो। दूसरा है एकदम ऑपोजिट में इंटेंशनल, पूरा जानबूझ के किया है। और इनके बीच में आता है कंडीशनल। कंडीशनल मतलब कंडीशंस नहीं, ये कंडीशनिंग्स के कारण है। तो अभी क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति गलती करता है तो किसी साधारणतः क्या होता है, गलती के बाद में 2 चीज़ें देखनी, रिग्रेट और रिफॉर्म। रिग्रेट मतलब क्या व्यक्ति को पश्चाताप हो रहा है, और रिफॉर्म मतलब को क्या व्यक्ति वो छोड़ रहा है। तो क्या होता है, अगर हम देखते हैं किसी की सर्कमस्टेंशियल गलती होती है, तो अगर हम यहाँ पे रिग्रेट और रिफॉर्म, तो क्या होता है कि अगर किसी की सर्कमस्टेंशियल गलती है तो क्या उस व्यक्ति को रिग्रेट होता है, उसको बुरा लगता है, मैंने नहीं करना चाहिए था। और फिर रिफॉर्म होता है, रिफॉर्म में छोड़ देता है वो। अभी जब इंटेंशनल होता है तो क्या उसको रिग्रेट होता है? रिग्रेट नहीं होता है उसको। अगर रिग्रेट होता भी है, दुर्योधन ने जब द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास किया, क्या उसको रिग्रेट हुआ? हाँ, उसको रिग्रेट हुआ कि वो वस्त्रहरण यशस्वी नहीं हुआ। कि नॉट दैट आई डिड रॉन्ग, मैंने गलत किया नहीं, मैंने जो गलत किया वो गलत योजना पूरी नहीं हो पाई, तो वो रिग्रेट कुछ फायदा नहीं है उसको। तो रिग्रेट नहीं है, रिफॉर्म भी नहीं होता है। हम देखते हैं कि दुर्योधन जो है वो और बुरे बुरे कार्य कर जाता है। तो इन दोनों के बीच में जब किसी का कंडीशनिंग बहुत स्ट्रांग होता है तो क्या होता है, रिग्रेट होता है पर रिफॉर्म नहीं होता है। उसको लगता है कि मैं बहुत बुरा किया, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, पर बाद में वही कार्य वो कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति का कंडीशनिंग्स बहुत स्ट्रांग है। कोई शराब पीता है और बोलता है कि मैं शराब छोड़ने वाला हूँ। तो एक ब्रिटिश प्लेराइट है ऑस्कर वाइल्ड, वो कहते हैं कि गिविंग अप स्मोकिंग इज द ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, आई हैव डन इट ओवर 100 times। सिगरेट छोड़ना बड़ा आसान है, मैंने 100 बार कर दिया है वो। पर क्या होता है, वो मतलब छोड़ने की इच्छा होती है पर छूटता नहीं है वो। तो अभी क्या है कि जब ये बीच में होता है कोई व्यक्ति, तो वो उसको बुरा लगता है पर वो छोड़ नहीं पा रहा है। तो उस समय 2 चीज़ें होती कि कैसे इंटेंशनल है तो हम कैसे उसको सीधा पनिशमेंट देना चाहिए, कोई डिसिप्लिन देना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए। सर्कमस्टेंशियल है तो सीधा फॉरगिव एंड फॉरगेट। पर अगर बीच में है तभी क्या करना है, तभी कम से कम देयर हैव टू बी बाउंड्रीज।
कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बार बार शराब पीते रहता है, तो अगर उसके बाउंड्रीज हो गए क्या है कि ओके अगर कोई मान लीजिए कोई गैम्बलिंग करता है बहुत, तो बोलता है मुझे गैम्बलिंग छोड़ना है, फिर भी गैम्बलिंग हो रहा है। आजकल स्पोर्ट्स गैम्बलिंग होता है, बहुत प्रकार के गैम्बलिंग आ रहे हैं आजकल, बड़ा एडिक्शन बढ़ रहा है वो एक तरह से। तो फिर उसको शायद फैसला करें कि आई विल नॉट कीप रेडी कैश विथ मी। क्रेडिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड का कुछ मिनिमम लिमिट रखो, कैश कम रखो, तो कुछ ना कुछ तो बाउंड्रीज रखनी चाहिए, जिससे कि भले ही उसको वो परिस्थिति आ जाए तो वो उसमें ज़्यादा दूर न जाए। और अगर वो बाउंड्रीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो फिर वो बड़ा प्रॉब्लम है। अगर सही में अगर इफ़ यू आर रियली रिग्रेटफुल, तो क्या होता है वो व्यक्ति, कई बार जब हम में कमज़ोरियाँ होती है तो सी हैविंग वीकनेसेस डजंट itself make us weak. Denying that we have weaknesses, that is what makes us weak. कि सब में कमज़ोरियाँ होती है, पर अगर मैं स्वीकार करता हूँ मुझ में कमज़ोरियाँ है तो क्या है कि उसका कुछ सामना कर सकता हूँ मैं। तो बोलते नहीं, कुछ समस्या है ही नहीं। तो फिर तो अगर वो स्वीकार कर रहा है, उसको जो पश्चाताप हो रहा है, रिग्रेट लग रहा है, वो सही है, दैट पर्सन शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट सम बाउंड्रीज। उस व्यक्ति को सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है एक तरह से कंडीशनिंग अलग अलग होती है लोगों में, तो वो कंडीशनिंग्स को छोड़ना आसान नहीं है। पर अगर वो बाउंड्रीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा है तो फिर क्या मतलब उसकी जो रिग्रेट है वो प्रामाणिक नहीं है। दे शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट बाउंड्रीज। तो कम से कम वो बाउंड्रीज से भले ही वो गलत दिशा में जाएगा, उतना नहीं जाएगा वो दिशा में। और बाउंड्रीज महत्वपूर्ण है, पर उसके साथ साथ क्या है कि एक है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मतलब क्या है कि सम हेल्दियर कनेक्शन, कि कोई और सकारात्मक आदत, कोई और मीनिंगफुल कार्य, कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करता है। मैं ओहायो में था, वहाँ पे एक भारतीय विद्यार्थी स्टूडेंट मुझे मिलने आया था। ट्रैजिक स्टोरी, कैसे कि अमेरिका में बहुत ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम है, पर वहाँ पे जो ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक भारत से अलग है। वहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं वहाँ पे जो पेन किलर्स देते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं पेन किलर्स, वो पेन किलर्स एडिक्टिव होते हैं। तो सिर्फ कई किताब भी लिखे, एम्पायर ऑफ पेन नाम की किताब है, कैसे जो पेन किलर मैन्युफैक्चर करते हैं वो बहुत अमीर बन गए। वो बिग फार्मा कभी कभी बहुत डेंजरस होता है। तो क्या हुआ था, ये भारतीय विद्यार्थी IIT से था, आज बहुत अच्छा बुद्धिमान था, और वो कोलंबस में गया यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए, और उसका एक कार क्रैश में एक्सीडेंट हो गया। तो फिर वो हॉस्पिटल में गया, उसका थाई फ्रैक्चर हो गया था, और जब फ्रैक्चर हो गया था तो तभी उसको काफ़ी दर्द हो रहा था थाई फ्रैक्चर के कारण, तो उसको पेन किलर दिया गया। और वो ऐसा पेन किलर था, तो वो गया हॉस्पिटल के अंदर एक फ्रैक्चर्ड पैर के साथ, और हॉस्पिटल से बाहर आ गया एक एडिक्टेड मन के साथ। इट्स ट्रैजिक। तो जब वो अभी डॉक्टर ने पेन किलर दिए हैं, पर क्या हुआ है, वो पेन किलर को ऐसे एडिक्टिव प्रॉपर्टी होती है, तो और लेना चाहिए। और कभी कभी कुछ और द काउंटर मिलते हैं, अगर ओवर द काउंटर नहीं मिलते हैं तो फिर कुछ और व्यक्ति को प्रिटेंड करना पड़ता है, बहुत समस्या हो जाती है। तो बोला था कि आई हैड सो मेनी ड्रीम्स, मुझे बहुत कुछ करना था, मैं भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाके आया हूँ, वापस बार बार वही हो रहा है। तो मैं तभी उससे पूछा कि इमेजिन इफ़ यू डिडंट हैव दिस एडिक्शन, अगर आपको ये एडिक्शन नहीं होता तो आप क्या करना चाहते थे, व्हाट वुड यू हैव डन विथ योर लाइफ। तो उसने कहा कि मैं केमिस्ट्री में स्टडी कर रहा था, तो मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा रिसर्च करूं जिससे कि ऐसे पेन किलर्स डेवलप करो जो एडिक्टिव नहीं होंगे। तो दैट्स अ वेरी नोबल एस्पिरेशन, कि तुम्हें जो दुख हुआ है उससे तुम कुछ हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। तो बोले तुम कहाँ तक कर पाए हो ये है। मैं तो अभी 1-2 घंटे के दिन में फंक्शनल रहता हूँ, उसके बाद विड्रॉल पेन आते हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी जा नहीं सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता अभी। लेकिन मैं उनको बोला कि अगर दिस इज़ मीनिंगफुल फॉर यू, अगर ये आपके लिए अर्थपूर्ण है, तो आजकल तो एजुकेशन के लिए एक्सेस बहुत हो गया है। तुम कोई किताबें पढ़ सकते हो, तुम यूट्यूब पे कुछ सुन सकते हो, तुम ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। यू डोंट हैव टू गेट फॉर्मल डिग्री प्राप्त करने के लिए रुको मत। अभी जितनी तुम्हारी क्षमता है
उतना क्षमता में तुम सकारात्मक कार्य चालू कर दो। और क्या होता है कि अगर जितना हमारे जीवन में कुछ मीनिंग आ जाता है, कुछ अर्थपूर्ण कार्य हम करने लगते हैं, तो उससे ही हमको प्रेरणा मिलती है कि जो भी वी गेट मोर स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट द अनहेल्दी हैबिट्स। कभी क्या है कि देयर इज़ अ पार्ट ऑफ अस, हम सब में एक ऐसा पार्ट है, एक अंश है विच वॉन्ट्स टू लिव फॉर समथिंग बिगर देन आवरसेल्व्स। जो कई बार ऐसे एडिक्ट होते हैं, अगर मुझे खुद के लिए ही मुझे एडिक्शन छोड़ना है तो छोड़ पाते हैं, पर अगर मैं किसी और का कल्याण कर सकता हूँ, मैं किसी और की मदद कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे एडिक्शन छोड़ना है, तो उससे कभी कभी और प्रेरणा मिलती है। तो ही दिस वॉज अबाउट 2.5 years ago। तो उसके बाद ही वॉज इन टच विथ मी, बोले कि मैं चालू किया वो रोज़ मैं केवल 1 घंटा आई हैव ल्यूसिडिटी। नो एडिक्शन के कारण क्या मेंटल फॉग होते रहता है हमेशा, पर 1 घंटा मुझे ल्यूसिडिटी था तो मैं उतना करने लग गया। और उस 1 घंटे से मैं स्टडी करता था, इतना भी सेटिस्फैक्शन मिलने लग गया कि वो ही वॉज ऑल्सो चैंटिंग एंड एवरीथिंग। पर वो बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है एडिक्शन का, उसको समय लगता है। तो वो भक्ति भी कर रहा था, पर भक्ति इज़ नॉट जस्ट चैंटिंग। भक्ति का मतलब क्या है कि हमें समझना कि गॉड हैज़ अ पर्पस फॉर माई लाइफ। आई एम अ पार्ट ऑफ गॉड एंड दैट मीन्स आई हैव अ पार्ट इन गॉड्स प्लान। तो अभी ये करने लगे, तो बोला कि 1-1.5-2 साल में उसका पूरा एडिक्शन चला गया। नाउ ही इज़ डूइंग रिसर्च एंड ही इज़ बिकम वेरी गुड इन रिसर्च। तो क्या है कि कई बार जब ऐसे होता है कि कोई परिस्थिति होती है कि हमारे जो अर्जेस होते हैं, कि हमारे अर्जेस के कभी कभी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जब वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं तो रिलैप्स हो जाता है, और तभी हम कुछ नहीं कर सकते। कितने बार भी बोले कि मैं ऐसे नहीं करूँगा नहीं करूँगा, पुनः वापस कर देते हैं। तो ये हमारे अर्जेस है, और ये अर्जेस के कभी सर्जेस हो जाते हैं, वो सर्ज हो जाते हैं बहुत। तो इसको अगर हम बोलते हैं रेजिस्ट करो, तो रेजिस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। पर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन परसिस्ट बिटवीन द अर्जेस। किसी को कोई शराबी है, किसी को जो गैम्बलिंग का एडिक्शन, जो भी एडिक्शन है, ऐसे नहीं कि वो उसका जो क्रेविंग होता है 24 घंटे उतना ही रहता है। कभी कोई आता है चले जाता है, पर जब आता है शायद असह्य हो जाएंगे हम। तो इसके जो सर्जेस आते हैं, तो उसके लिए हम कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब मुझे आ जाता है यार जब मैं गैम्बलिंग करूँगा, पर मेरे पास ज़्यादा पैसे ही नहीं है रखूँगा, तो क्या कितना गैम्बलिंग कर पाऊँगा मैं। तो बाउंड्री से हम थोड़ा बच सकते हैं उससे। पर उसके मुझसे बहुत महत्वपूर्ण है कि बॉन्ड्स, जब मुझे वो नहीं है और जा रहा है, तब मैं क्या कर रहा हूँ। और उस समय अगर हम एक मीनिंगफुल कार्य करते रहते हैं, तो उससे धीरे धीरे क्या होगा, ये जो अर्जेस है, जो क्रेविंग्स है, वो उनका सिवियरिटी और उनका फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इस तरह से विल बी एबल टू परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो परम दृष्ट्वा है वो हायर टेस्ट कहते हैं, बट एट हायर टेस्ट जो है वो एक जर्नी है, जो भगवता में 261 में बताते हैं परम दृष्ट्वा। तो कैसे कहते, हायर टेस्ट, उसको प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो हायर टेस्ट मतलब क्या है, हमें और कोई अच्छा ऊंचा स्वाद मिल जाता है, तो उसको समय लगता है। सबसे पहले क्या है कि शुरुआत होती है हायर विजन। हायर विजन दृष्टवा, देखना कि आई कैन हैव अ बेटर लाइफ, आई कैन बी अ बेटर पर्सन। मैं और अच्छा व्यक्ति बन सकता हूँ, वास्तव में बन सकता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा हमेशा शुद्ध ही है। तो हाँ, मेरा मन आसक्त हो सकता है, मन में कमज़ोरियाँ हो सकती है, पर मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा शुद्ध ही है। सबसे पहले हमको ये हायर विजन लाना है। तो ये खास करके हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय से बार बार हमको ये हायर विजन याद दिलाता है। पर उसके बाद केवल हायर विजन सफिशिएंट नहीं है, उससे हमको एक हायर पर्पस चाहिए कि ठीक है, अगर मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान की मेरे जीवन के लिए भी योजना है, तो फिर मैं अभी क्या कर सकता हूँ। तो जब हम कोई हायर पर्पस लाते हैं हमारे जीवन में, तो उससे क्या होता है, हमारा जो मन है
सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक योजनाओं से, सकारात्मक सपनों से भर जाता है और फिर उससे ग्रेजुअली हायर टेस्ट आता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति है बार बार वो कर रहा है, इफ इज दैट पर्सन इज रेडी टू एक्सेप्ट बाउंड्रीज, कोई सीमाएं स्वीकार करने के तैयार है और कुछ हायर बॉन्ड्स डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, तो फिर ज़रूर वो परिवर्तित हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग ऐसे गार्डन में किधर भी हमको आदत है, हम चैंटिंग करते रहते हैं, तो कुछ लोग हमको ऐसे बोलते हैं, भाई आप मीरा भाई थोड़ी हो, ये तो घर में बैठ के करना चाहिए, आप दिखावा क्यों करते हो? ओके, हम सब जब कीर्तन करते हैं तो दिखावा क्यों करते हैं? ओके, एक्चुअली जो डिवोशन है उसकी दो चीज़ें हैं, एक है एक्सप्रेशन और दूसरा है एग्जिबिशन। ये दोनों एक चीज़ नहीं है। कि जब हम हमारा भक्ति एक्सप्रेस कर रहे हैं उसका मतलब ज़रूरी नहीं कि एग्जिबिशन ही कर रहे हैं, ये दोनों में फ़र्क है। खास करके एग्जिबिशन जब कहते हैं उसको, जब अंदर कुछ डिवोशन है नहीं, सिर्फ दिखावा है। अगर हम अच्छी साधना कर रहे हैं, अच्छी हमारे जो प्राइवेटली भी भक्ति करते हैं हम, तो और हम पब्लिकली जब अप्रोप्रिएट है वहाँ पे हम वो हम एक्सप्रेस करते हैं, तो दैट इज़ नॉट एग्जिबिशन। जनरली एग्जिबिशन कब होता है? देयर इज़ नथिंग इन प्राइवेट एंड अ लॉट इन पब्लिक, उसको एग्जिबिशन कहते हैं जनरली। तो किसी मतलब वो केवल दिखावे के लिए ही कर रहे हैं। कभी कभी हमारा जुहू में एक मंदिर है, तो वो बॉलीवुड के सारे एरिया में ही है, तो कई बार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जन्माष्टमी ऐसे समय में आ जाते हैं, तो भी उनमें कई लोगों में उनमें से भक्ति भी हो सकती है, भक्ति का भाव, श्रद्धा का भाव हो सकता है, पर सबका शायद ऐसे नहीं होता है। जो लोग मंदिर में जाते हैं और फिर जाके वो फिर अपने इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, मैं मंदिर में गया था, उसके फ़ोटोज़ दिखाते हैं, शायद उनके लिए एक फ़ोटो ऑप है वो सिर्फ। तो क्या है, वो मंदिर में दर्शन लेने के लिए जा रहे हैं, मंदिर में दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। पता नहीं हमको, वी नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन ओवर हियर। तो अगर किसी को भगवान में श्रद्धा है भी नहीं कुछ, और सिर्फ क्या है, मुझे मेरे फ़ोटो को बहुत से व्यूज़ मिल जाएंगे, लोग अच्छा लगे, इसलिए दिखावे के लिए जा रहे हैं, तो अंदर कुछ है ही नहीं और बाहर है, तो वो दिखावा है। दैट्स वन थिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारे हृदय में भक्ति है, तो जब हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो द आइडिया इज़ वी वांट टू शेयर इट विद अदर्स। हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे किसी पे। हम पब्लिक में कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोले कि सबको बोल रहे हैं ज़बरदस्ती तुम भी कीर्तन करो, तुम नहीं कीर्तन करोगे तो थप्पड़ मारोगे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कुछ। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन। क्यों है? Expression is for the purpose of sharing. It is not for the purpose of forcing. तो प्रभुपाद जी इसका उदाहरण दिया करते थे, क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, उसको बहुत समय से बीमारी है कोई, और उसके बाद में उसको उसकी कोई दवाई मिल जाती है, क्योर मिल जाता है, और फिर वो अगर देखता है कि कोई और व्यक्ति है उसको भी वही बीमारी है, तो क्या होगा? वो स्वाभाविक उसको बताएगा कि ये दवाई ले लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। तो बोलते भक्ति का प्रचार हम करते हैं, उसका भी वही भाव है। हमारा जीवन में शायद अर्थ, मीनिंग नहीं था, कुछ जीवन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, हमको पता नहीं था। शायद हम में भी काम, क्रोध, लोभ बहुत था, शायद अभी तक चला नहीं गया, पर काफ़ी हद तक थोड़ा कम हो गया है। हमने खुद सकारात्मक परिवर्तन हमारे जीवन में देखे हैं, इसलिए हम वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो एज डिवोटीज हम भी सेंसिटिव है, ऐसे नहीं है कि कहीं भी जाके हम कीर्तन करेंगे, देश काल पात्र के अनुसार हम कीर्तन करते हैं। तो द आइडिया इज़ वी आर ट्राइंग टू शेयर विद अदर्स। अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को उसका बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो फोर्सिंग हमें नहीं करना चाहिए किसी को, शेयरिंग ज़रूर करना चाहिए। ये भगवगीता में शास्त्र बताते हैं कि जो मेरे संदेश को फैलाते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय बन जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि वो हम जो हमारे भक्ति का
जो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं वो भक्ति का प्रकटीकरण कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हृदय में भक्ति है, उसको व्यक्त करना है। और व्यक्त वो हम पब्लिक में क्यों कर रहे हैं? ताकि दूसरों को पता चले और दूसरों को मौका मिले वो भक्ति स्वीकार करने का। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। जब मैं अयोध्या गया था तो 22 तारीख को आई डेंट हियर डायरेक्टली बट आई हर्ड लेटर ऑन कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पीच दी थी तो उन्होंने एक वाक्य बोला था, राम मंदिर तो आ गया, अब आगे क्या। When I was listening to this presentation, तो मुझे लगा जो मोदी जी ने कहा था अब आगे क्या, what is next, आज इस प्रेजेंटेशन में उसकी डेफिनेशन दी गई है। तो मंदिर की स्थापना करना बहुत आवश्यक है, पर साथ ही साथ भगवान राम की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना और अपने जीवन में परिवर्तन लाना अपने में ही अपने जीवन के लिए एक बहुत बड़ा पर्पस है। और उसको इतनी सरलता, इतनी क्लैरिटी के संग प्रभु जी ने समझाया। आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम विटनेसिंग हाउ के गॉट करप्टेड एंड हाउ भरत एंड के हैड अ कॉन्फ्लिक्ट। इस प्रकार से इन्होंने प्रभु जी ने इतनी सरलता और इन डेप्थ विद अनेक उदाहरण। एंड आई नोटिस प्रभु जी की प्रेजेंटेशन का एक ग्रेडेशन होता है। He'll begin with one simple point. I just like to get you on the board, you know, ताकि ज़्यादा एक्सट्रीम जाने से पहले, जैसे शुरुआत हुई थी वीकनेस से, फिर जाके विकेडनेस तक पहुँचे, तो फिर शायद प्रभु जी ने बोला था हो सकता है शायद हमें भी थोड़ी बहुत सी विकेडनेस होगी। You know, indirectly hinted at there is a lot of homework to be done. Anyways, a lot can be said. Once again, a very fantastic presentation. Let's thank His Grace Chaitanya Charan Prabhu by once loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी से। वैसे ये बहुत व्यस्त रहते हैं। You know, he just last year he came once to Pune. This year he has come right in the first quarter to Pune. तो मैं उनसे आज बात कर रहा था, मैंने कहा लगता है चांसेस हैं कि इस साल आप पुणे में 2 बार आएँ। तो आप में से कितने भक्त प्रभु जी से अभी आग्रह करना चाहेंगे कि जब अगली बार पुणे आए तो हिंजेवाड़ी में जरूर आइएगा। तो जोर से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अपने आग्रह को स्पष्ट करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु जी हमें हमारी कम्युनिटी के बिहाफ पर इस आग्रह को स्वीकार करेंगे। जब अगली बार आएँ, he'll definitely make a time for visit to Hinjawadi also.